Hello class 12 students, how are you all? So now in this video we will start the topic calls in areas of accounting for share capital chapter. So pehle first we will discuss that what is the meaning of calls in area. Calls in area का meaning क्या होता है? Which we were studying the process of issuing shares. What process was that? That suppose the company is issuing total 10,000 shares and the value of one share is rupees 15. Okay, one share की value कितनी है 15 and company is taking this money in 3 division. Okay, how? Application and the second allotment and the third one is first and final call. So application rupees 7, then rupees 5 on allotment and rupees 3 on first and final call. Like this, company is taking the amount from the public. Okay, now what is calls in area in that? First of all, there is one shareholder who is holding 1000 shares. एक shareholder है, suppose you are the shareholder and of this company and I don't know your name, so suppose your name is A. Okay, so you are the shareholder and you are holding the 1000 shares of this company. You have given application money. It's mandatory, without this you cannot apply for shares in the company. जब आपने apply किया shares के लिए, according to 7, the company has received all the amount. 10,000 into 7, 70,000. ठीक है, receive हो गई. Then after that, when the company is allotting the shares to the public, then the company is taking the money from public according to rupees 5. So 10,000 into 5, 50,000 allotment के time पे आ गए. But when after some times company is making the first and final call के पैसे मांग रही है company public से, so at this time one shareholder who is holding 1000 share, he is not giving the money, means he is failed to pay the first and final call. ये लैंग्वेज आएगी कॉल्स इन एरियर्स में जब भी क्वेश्चन में आएगी, दैट वन शेयर होल्डर, मे बी द नेम विल बी गिवन और नॉट, वन शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग 1000 शेयर्स और जो भी, is not able to pay first and final call, is not able to pay allotment money, is not able to pay second call, जो भी होगा that will be clearly given to you in the question. So in our question, this is that one shareholder who is holding 1000 share is not able to pay or is failed to pay first and final call. तो हमारे पास 10,000 शेयर्स के पैसे आने थे 3 के हिसाब से 30,000, बट नहीं आ रहे हैं. अब हमारे पास कितने शेयर्स के हिसाब से पैसे आ रहे हैं? 1 नहीं आ रहे हैं ना. एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर है, he is not giving the money. So now on the first and final call, we are receiving the amount of 9,000 shares into 3, means 18,000. So the 2,000 which we are not, 3,000, 27, 9 into 3, 27,000, which 3,000 which we are not receiving, that amount will go in account calls in area. ये होता है कॉल्स इन एरियर. जब कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल को नहीं दे रहा है, उसकी अमाउंट उसके टाइम पे नहीं दे रहा है, मीन्स द एनी शेयर होल्डर इज फेल टू पे एनी कॉल मनी. अलॉटमेंट भी हो सकती है, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, जो भी है वो उस टाइम पे जब कंपनी मांग रही है, द शेयर होल्डर इज नॉट गिविंग, दैट टॉपिक इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. ठीक है, सो एंट्रीज बाकी सब सेम रहती हैं, जस्ट अ लिटिल डिफरेंस विल बी देयर इन दैट कॉल इन विच वी आर नॉट रिसीविंग द अमाउंट. उसमें जरा सा डिफरेंस रहेगा, एंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट मेनली. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, मीन्स 2 केसेस होते हैं. इफ इन द क्वेश्चन they are clearly saying that we need to open calls in arrears account, जब हमें calls in arrears का अकाउंट खोलने को कहा गया है, then we will mention calls in arrears in the entry. और कौन सी एंट्री में? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, जो जिसमें calls in arrears हो रहा है.
if they are not saying to open call in arrears account, so directly when we will do the एंट्री ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं उसकी जब हम एंट्री करेंगे तो हम डायरेक्टली उसमें कौन सी अमाउंट मेंशन करेंगे, 27,000 इंस्टेड ऑफ 30,000. जो 3,000 का डिफरेंस है वो हम कहीं मेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 20,000 मेंशन करेंगे. बट इफ दे आर सेइंग टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, देन यू ऑलरेडी नो द रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री. कॉल्स इन एरियर एक तरह का कंपनी का क्या है, लॉस. तो वो लॉस कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं. सो वी विल मेंशन दिस कॉल्स इन एरियर इन द डेबिट ऑफ बैंक एंट्री, जो हम बैंक की पेमेंट रिसीव की एंट्री करते हैं. व्हाट वाज द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट. दीज टू एंट्रीज विल बी सेम. फर्स्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट, देन ट्रांसफरिंग द अमाउंट इन शेयर कैपिटल. देन दीज टू एंट्री ऑफ अलॉटमेंट अगेन विल बी सेम. फर्स्ट द एंट्री ऑफ ड्यू द अमाउंट, देन रिसीविंग. देन अगेन जो हम एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू करने की, क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. वो पूरी हम 30,000 से करेंगे. वाई, बिकॉज कंपनी डजंट नो दैट द कंपनी विल नॉट गेट द होल अमाउंट. उसको नहीं पता है, वो ड्यू तो पूरे से ही कर रही है. व्हेन द कंपनी विल रिसीव द मनी ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देन इट विल गेट टू नो दैट वन शेयर होल्डर इज नॉट गिविंग द अमाउंट. तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ बैंक वाली एंट्री में आएगा. एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. तो कैसे होनी थी, 30-30. बट बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, सिर्फ 27,000. कंपनी इज रिसीविंग ओनली 27,000 इन बैंक, और कॉल्स इन एरियर्स था हमारा 30 का, 10,000 इंटू 3. सो जो डिफरेंस है वो किस में जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स में. तो हम डेबिट में एक अकाउंट खोलेंगे कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट. उसमें कितने जाएंगे, 3,000. इफ it is not written in the question, that don't means not written in the question that to open the call in area account, so we will not do this, we will not include this in the entry. Only we will do this normal entry with the amount 27,000. got it clear, the basic thing of calls in area, that what is calls in area और कैसे होनी है entry. Don't worry, we will do one question of this topic. So student, this is the question. I have written the question in short. Hope that you will be understand. XYZ Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each and payable as rupees 3 on application, 4 on allotment and rupees 3 on first and final call. So 3 or 4, 7 and 3, total 10. Fine. All the money is duly received except two shareholders. One is holding 1,000 share and another is holding 300 shares. Both have failed to pay first and final call. जब first and final call मांगी गई तो दोनों ने ही पैसे नहीं दिए. एक के पास 1,000 शेयर्स हैं और दूसरे के पास कितने शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे क्वेश्चन. फर्स्ट 2 एंट्रीज ऑफ एप्लीकेशन. फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है एप्लीकेशन की, मनी रिसीव करने की. बिकॉज व्हेन द पब्लिक अप्लाई फॉर शेयर फर्स्ट दे डू दी पेमेंट. तो पहले हम पेमेंट रिसीव करते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे. सो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. यू प्लीज राइट कंप्लीट वर्ड्स, डोंट राइट लाइक दिस. ओके, तो कितने पैसे आएंगे, टोटल है हमारे 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट है ₹3, so 60,000. okay, and narration also is very important. okay, being application money received. Now we will transfer this application money into share capital account. So second entry will be share application account debit to share capital account, same amount. तो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की. नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑफ अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में भी कुछ नहीं है, इसमें प्रीमियम भी नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स भी नहीं है. कॉल्स इन एरियर्स किस में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में. तो सेम एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट ड्यू की एंट्री, देन अनदर विल बी द एंट्री ऑफ रिसीविंग पेमेंट. पहले कंपनी ड्यू करती है. इसमें थोड़ा अलग होता है क्योंकि पहले हम पब्लिक से मनी रिसीव करते हैं देन वी ट्रांसफर, बट इसमें फर्स्ट वी ड्यू द मनी देन वी विल गेट. ओके,
and entries we are recording according to the company point of view, public के point of view से नहीं. ओके तो अलॉटमेंट की करेंगे. फर्स्ट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने से होगी? 20,000 शेयर्स इंटू 4 मीन्स 80. एंड नेक्स्ट विल बी रिसीविंग amount, so bank account debit to share allotment account. If you don't know these basic entries, kindly first see the 3 videos I have already uploaded. Basic entries, add par and means basic concept and basic journal entries, and then add premium. 3 cases entry मैंने पहले अपलोड कर दिया. First saw these videos, please see these videos, then come to this. Okay, so share allotment, ये हमने मनी रिसीव कर ली. कितनी? 80,000. Now first and final call. In this call we have calls in arrear. Arrear है मीन्स पैसे नहीं आए हैं किन्हीं शेयर होल्डर्स के. ठीक है, बट आई टोल्ड यू अगेन, आई एम रिपीटिंग कि ड्यू की जो एंट्री होगी व्हेन वी आर ड्यू द अमाउंट, then the complete amount will be there in the entry, because that time company doesn't know that how much money the company will be receiving. कंपनी तो यही सोचेगी कि जितना पैसे हम कॉल पे रखे हैं उतने हमें सब रिसीव हो ही जाएंगे. ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या करेंगे? शेयर, वो जैसे करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो ड्यू तो हम पूरे से ही करेंगे. कितना? 20,000 इंटू 3 अगेंस्ट 60,000. ओके, फिर हम करेंगे एंट्री जिसमें कॉल्स इन एरियर्स है. अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है उसकी कैसे होगी, नहीं खोलना है तो कैसे होगी, मैं दोनों तरीके से कर रही हूँ. ठीक है, तो व्हेन वी विल ओपन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, देन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये एंट्री जब होगी जब हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलना है. एंड इफ नो नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, देन द एंट्री विल बी द सेम, कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. ओके, you don't need to do both. I am telling you both, I am explaining, but you do according to the question. Okay, now first the amount share first and final call में कितनी आएगी? 60, जितनी ड्यू करी है. फाइन. बैंक में कितने पैसे आए हैं, या तो आप पहले इसे देख लें या फिर वी कैन सी कितने नहीं आए हैं उतने कॉल्स इन एरियर्स में चले जाएंगे. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक देखेंगे तो हमें पता है कि डिफरेंस दूसरी में आ जाएगा. तो कॉल्स इन एरियर्स देख लेते हैं पहले. कितने का है? 1,000 टोटल शेयर्स. कितने हैं जिनके पैसे नहीं आए हैं? 1,000 ऑफ द फर्स्ट शेयर होल्डर एंड अनदर इज होल्डिंग 300. तो टोटल शेयर्स कितने हो गए जिनके पैसे नहीं आ रहे हैं? 1,300. एंड कॉल्स इन एरिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है 3. सो 1,300 इंटू 3, 3,900 रुपीज वी आर नॉट रिसीविंग. ओके, you can see like this also. if you don't want to see the calls in errors account की अमाउंट आपको नहीं देखनी है तो आप ये देख सकते हैं कितने शेयर्स के पैसे आ रहे हैं. टोटल शेयर्स है 20,000. कितने शेयर्स हैं टोटल? 20,000. 1,300 शेयर्स के पैसे नहीं आ रहे हैं. सो हाउ मेनी शेयर्स आर रिमेनिंग? 18,700. तो हम बैंक में एंट्री कर सकते हैं किससे? 18,700 शेयर्स अकॉर्डिंग टू ₹3. So 56,100. Now you do the totaling. It should be equal to the credit side. Yes, it is 60,000. This is the entry according to when we need to open the calls in arrears account. Otherwise, ये जो अमाउंट है जितने के पैसे हम जितनी अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वही अमाउंट दोनों साइड आ जाएगी, बैंक में भी और कॉल्स इन शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी. सो दिस वन और दिस वन आई हैव एक्सप्लेन यू बोथ टाइप ऑफ एंट्रीज. कुछ भी डिफरेंस नहीं है. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यहाँ से हटा के फिर जितने पैसे हम रिसीव कर रहे हैं वो लिखने हैं यहाँ पे. खोलना है तो खोल दीजिए,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है. So this is the concept of calls in arrears. Now in the next video we will study the topic calls in advance. Okay, I hope it's clear to you. Thank you.